ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਆਖੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚੇ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵੀ ਪਾ, ਤਾਣ ਵੀ ਪਾ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ। ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਾਣਾਪਣ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਦੇਵ ਗੇ ਰਸ, ਅਕਲ ਸਰ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭੇਵ ਨ ਲਹਨ। ਬਈ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਸਰ ਦੇ ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਕਾ ਭੇਵ ਨ ਲਹਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਗਿਣ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਵੈ ਮਾਣ, ਅਣਖ, ਖੁਦਦਾਰੀ, ਗੈਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਬੇਅਣਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਣਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਣਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਣ ਨਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਖ, ਨਾ ਖੁਦਦਾਰੀ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਔਰ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਣਾ ਕੀ ਜੀਵਣਾ। ਪੰਕਤੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇं, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇं।
सानू संसार चाहिए। तो ये कोई लंगड़ी जिंदगी व्यतीत कर रहा सी, कोई अंधी। ये दोहां नूं गुरमत ने कबूलिया नहीं। संसार की खातर निरंकार नूं छड्डण दी लोड़ नहीं, ते निरंकार की खातर संसार नूं छड्डण दी लोड़ नहीं। शरीर का गुप्त हिस्सा आत्मा है, आत्मा का प्रगट हिस्सा शरीर है, संसार का गुप्त हिस्सा निरंकार है, निरंकार का प्रगट हिस्सा संसार है। तो दोवें जुड़े हुए, कोई त्यागण की लोड़ नहीं। पर समझ नहीं सी, सूझ नहीं सी। इस वास्ते बाबे ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया। रूहे जमीन के उत्ते किसी अवतारी पुरुष ने इतना भ्रमण नहीं किया। बीज पा छड़िया सी चारों पासे, बाद 9 पातशाहियां उस बीजे हुए बीज नूं गोडी देंदियां रहियां, पानी पांदियां रहियां, खाद पांदियां रहियां, ताकि गुरु नानक दा बीजे होया बीज प्रफुल्लित होवे। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक जाके वो बीज प्रफुल्लित होया। ये गल वखरी है कि थोड़े बीज प्रफुल्लित होए, पर होए। एक सियाणे का कहना है कि ठीक है कि मैं समुची जमीन नूं गुलिस्तान नहीं बना सकिया, पर कहंदा जिन्ना जिन्ना गलियां तो मैं लंघिया, कम से कम कंडे मैं जरूर चुने, ताकि लोगों नूं कंडे ना चुभन। माना कि इस जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ हार कम ही कर गए, गुजरे जिधर से हम। तो मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुख दे। मान किथे हुंदा है? जिथे तान है। तान कहने ताकत नूं, जिथे ताकत नहीं उत्थे मान करदा। निताणे कोल मान नहीं आउंदा, तान वाले कोल ही मान आउंदा। और ये वाक कई थावां ते मिलणगे। तान मां दीवान साचा, नानक की प्रगटे। मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। तान साडे देश के शास्त्रकारां ने कई तरह का मनिया। तान यदि थोड़ी जी मैं व्याख्या करते हैं ताकि गल स्पष्ट हो जाएगी। तान ताकत, वो इस तरह गिनती करते हैं, तन का तान, धन का तान, बौद्धिक तान, मानसिक तान, ते आखिर विच गल वो मुकांदे ने राजसी तान ते रूहानी तान। ये वख-वख ताकतां ने। जिहड़ी ताकत बंदे कोल होवेगी, जिहड़ा तान होवेगा, मान जरूर होवेगा। क्योंकि तान की छाया है मान। जिथे तान है उत्थे मान आएगा, उत्थे मान परिक्रमा करता है। मान, प्रतिष्ठा, पूजा और इज्जत। तो प्रथम उन्होंने पहल दी है तन का तान। शरीर में बड़ा बल है, बड़ी ताकत है, यदि भी अपनी गल है। दुनिया के शरीर की बहुती ताकत रखने वालों भी बड़ा मान मिलता है। जिहड़े पहलवान ने, बड़ा शरीर रिष्ट पुष्ट है, बड़ी ताकत है, बड़ी गल है, उन्हों का शरीर देख के ही हैरानगी आती है कि मनुख का शरीर ऐसा भी हो सकता है। मनुख के शरीर की ऐसी बनतर भी हो सकती है। एक मामूली जिहा मुक्का मनुख नहीं खा सकता, वो इतने खा के भी हंसते ही रहते, कोई खास फर्क नहीं पैंदा। और समुची दुनिया दे इस तरह के मनुखों को गौरमेंट पद्धर के उत्ते मान दिता जाता है। साडे देश के सब तो वड्डे पहलवान को भारत केसरी का खिताब दिता जाता है 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा। उन्होंने सन्मानित किया जाता है और उन्होंने लकब देंदे ने भारत केसरी। ये भारत की पवित्र कला है कि भारत का पवित्र मुजस्मा है केसर की तरह। उन्होंने लकब देंदे है इसके कोल की सिर्फ तन का काम। पहलवानों के जलूस निकलते हैं, पहलवानों के चेले आते हैं, पहलवानों की बड़ी प्रतिष्ठा होती है, पहलवानों की बड़ी गल है समुची दुनिया जिन्हों के शरीर में बहुता तान है। तो तन का तान भी अपनी थान के उत्ते एक खास गल रखता है। लेकिन साडे देश के खोजी पुरुषों ने कहा
कि जिस बंदे का शरीर बहुता रिष्ट पुष्ट हो जाए, बड़ी ताकत है, पहलवान है, वो बौद्धिक तौर पर हीणा होंदा, कुबद्ध होंदा, कोई बहुती सूझ समझ नहीं आती, क्योंकि सारा समा उसका लग गया है शरीर को रिष्ट पुष्ट करने में। पौष्टिक गिजा खानी ते खाधी हुई गिजा को पचाने वास्ते बड़ी भारी एक्सरसाइज करनी, वर्जिश करनी, ते फिर उसने शरीर को स्टोल बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो सारा समा उसका उसदे च लग जाता है। फिलसफा की है, कला की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, इस पासे उसके कोल ना वक्त है ते ना उस तरह की मत रह जाती है। इस वास्ते अक्सर देखने विच आया है कि पहलवान अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, बहुत छेती क्रोधी हो जाता, माड़ी जियां गल दे भी अपने आप तो बाहर हो जाता, पर फिर भी उसकी प्रतिष्ठा है, फिर भी उसकी गल है। कारण तान है को, जिथे तान होगा मान होगा, लाजमी होगा। तन के तान तो बाद जिहड़ा दूजा तान मनिया गया वह भी तन नाल संबंधित है, वो है दिमागी तान, बौद्धिक तान। और ये तान भी अपने आले दुआले मान इकट्ठा कर लेंदा है। बल्कि साडे देश के ज्ञानी तो कहते हैं जिथे मान है कुछ ना कुछ तान होगा, लाजमी होगा, क्योंकि मान तान की छाया है, साया है, वजूद ही कोई नहीं, तो साया कितने, वजूद है तो साया होगी, लाजमी होगी। तान है तो मान होगा, लेकिन जिहड़ा तन का तान है पहलवान कोल है, इहदे नाल कोई आत्मा की शुद्धि नहीं होती। इतनी मैरिज करना है, जरूरी नहीं कोई पहलवान संत होवे, भगत बने, ब्रह्म ज्ञानी बने, ऐसी कोई लाजमी गल नहीं, जरूरी नहीं। और बड़े बड़े पहलवान किसी होर ढंग नाल जींदे देखे गए हैं। दूसरा तान मनिया दिमागी बौद्धक, जिवें शरीर की खास विशेष तौर पर खुराक ते वर्जिश रख के ते उन्होंने रिष्ट पुष्ट बनाया जाता है। इस तरह की एक दिमागी एक्सरसाइज भी है, दिमागी अभ्यास। फिलोसफर बन गया है, दार्शनिक बन गया है, कवि बन गया है, साहित्यकार बन गया है, दिमाग का धनी बन गया, ये भी एक तान है, तो हुण मान होगा, कुदरती गल है। लेकिन जिस तरह तन के तान वाले की आत्मा पवित्र होवे, ये लाजमी नहीं, दिमागी तान रखने वाले की आत्मा पवित्र होवे, ये भी कोई जरूरी है। दरबार अकबरी दे 9 बंदे ऐसे सन जिन्होंने अकबर कहता सी ये मेरे दरबार के 9 रतन ने। कुछ पत्थर ऐसे ने जिहड़े बड़े कीमती ने, ते वो कुल मिला के 9 किस्मां दे होंदे ने, जिन्हां दे बकायदा हिंदुस्तान विच नाम ने, भी ये मूंगा है, ये नीलम है, ये पन्ना है, ये लाल है, ये हीरा है, ये जवाहर है, ये मोती है। इस तरह के 9 बनते। वो जो 9 बंदे सन ना, इन्हों अकबर कहता सी मेरे दरबार के 9 रतन, एक चमकदे कीमती पत्थर ने। इन्होंने 9 बंदियां दे जनाब फैजी सी, कवि रहीम सी, तानसैन सन, मुला दो प्याजा सी, बीरबल से, राजा मान सिंह से। इन्होंने बंदियां नूं अकबर कहता सी मेरे दरबार के रतन ने। और सारे किसी वख-वख कला के मालक सन। फैजी बड़ा दार्शनिक, बड़ा फिलोसफर, बीरबल बड़ा चातुर, राजा मान सिंह बड़ा बहादुर सेनापति से अकबर की फौज का। तानसैन संगीत सम्राट से, संगीत दियां धुना छेड़ता से। रहीम बड़ा उच्च पायदार कवि से, शायर से। गरज के अकबर इन्हों का बड़ा सन्मान करता सी, बड़ी गल से। और अकबर कहता से ये मेरे दरबार के रतन ने, इन्हों तो बिना मेरे दरबार की शोभा नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी एक इशारा करते हैं, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा से मेरी सभा के कुछ श्रृंगार ने, भीषम द्रोणा कर्ण तज सभा श्रृंगार वडे मानुखा। ऐ कृष्ण किथे चले हैं, तेन पता नहीं मेरी सभा के कुछ श्रृंगार ने, मेरी सभा के कुछ शोभा ने। भीषम पितामह है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, ऐसे सदा श्रृंगार मनुखा छड़ के किथे चले हैं।
तो अकबर अक्सर कहता सी ये 9 बंदे मेरी महफिल के शिंगार ने, मेरे राज दरबार की शोभा ने, मेरी दरबार की महिमा ने। इन्हां कोल की सी? एक कला सी, और कला का, इलम का, ज्ञान का, विचार का वासा दिमाग में आउंदा। ये कोई आत्मा नहीं पवित्र होती। इतनी मैं अर्ज करते हैं, कोई बहुत बड़ा चोटी का कवि होवे, कलम का धनी होवे, ज्ञानी होवे, फिलोसफर होवे, दार्शनिक होवे, वो हिरदे के तल दे उत्ते भी पवित्र होवे, कोई लाजमी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। हिंदुस्तान पिछली सदी मिर्जा गालिब एक इतना उच्चा शायर होया है और उसदियां इतनियां बारीकियां ने नज़म दे कि पाकिस्तान में 150 तर्जमे हो चुके हैं उसके, और अजे भी सियाणे कहने कि गालिब तक साडा दिमाग नहीं पहुंचता। इकबाल भी कहता है कि दिमाग उड़ान की जांच मैं गालिब तो सीखी है कि दिमाग किवें उड़ारियां ला सकता है, कितनियां बुलंदियां नूं छू सकता है। वो कहता है ये गालिब नूं पढ़न तो बाद मैनूं पता चलिया, और गालिब की सारी जिंदगी परेशानियां च लंघी, और जब बहुता बेचैन हो जाता सी शराब पी जाता सी, और उस वक्त सब तो वड्डा शराबी ये गालिब, सारा दिन नशे च लीन रहना। इन्ना सियाणा मनुख जिहदी गल्लां दी लोकी अज भी कीमत पै पांदे। टुटा फुटा गालिब का मकान भारत सरकार ने पक्का बनाया है, उसकी यादगार बनाई है लाखां रुपए खर्च करके दिल्ली विच। भाई बड़ा सियाणा मनुख सी, बड़ा काबिल बंदा सी। तो काबिल सी दिमागी तल पे, आत्मक तल पे नहीं सी। बड़ा दार्शनिक, बड़ी गल ब्रह्म ज्ञानियों की तरह गल करता सी। वो कहता बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, ब्रह्म ज्ञानी की तरह कहता है भी ये समुची दुनिया की एक बच्चे का खेल और कुछ नहीं। जिवें एक बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा पिया होवे, गालिब कहता संसार मैनूं इंज दिखाई देता, कोई बच्चा खेड रहा, इस तो ज्यादा कुछ नहीं। तो जिवें वो खिडौणियां खेड खेड के परख जाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यों ज्यों बंदा वड्डा होंदा जाए खिडौने वड्डे हो जाते। एक छोटा बच्चा, उसकी कार छोटी है, उसदियां गुड्डियां छोटियां ने, उसका मकान छोटा है, उसके खिडौने छोटे ने। जरा मनुख वड्डा हो गया, खिडौने वड्डे हो गए, गल तो नहीं है। गुड्डियां वड्डियां हो गई, घर वड्डा हो गया, कार वड्डी हो गई। छोटा सी, क्रोध छोटा सी, विरोध छोटा सी, ममता भी छोटी सी, बदले की भावना भी छोटी सी, दुश्मनी भी छोटी सी। लड़ पैंदा सी उस वक्त सुलह कर लैंदा सी, पर ज्यों ज्यों वड्डा होया दुश्मनी भी वध गई, विरोध भी वध गए, क्रोध भी वध गया, लोभ भी वध गया। उदों लड़दा सी 5 मिनट बाद सुलह कर लैंदा सी, ते हुण ते चिता ते भी रख लई ते सुलह कोई नहीं, मरदे दम तक भी सुलह कोई नहीं। एक दफा पै गई दरार तो पै गई, दुश्मनी वड्डी हो गई, क्रोध वड्डा हो गया, विरोध वड्डा हो गया। इतनी वड्डी दरार पै गई है, हुण पाड़ के सीवने औखे हो जाते, भरने औखे हो जाते, इन्हां दराड़ां नूं तोड़ना औखा हो जाता है। गालिब कहता मैनूं तो इंज जापदा समुचा संसार एक बच्चे का खिडौना, इत्थे जम पैना, मर जाना, कुछ मिल गया है, कुछ खो गया है, बीमार है, तंदुरुस्त है, कहता सब खिडौना है, सब खेल है। हुण गुरु अर्जन देव जी भी यही कहते हैं, आमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। गल तो एको है लेकिन फिर भी फर्क है। एक दी गल आत्मा के तल तो आ रही है, एक दी गल दिमाग के तल तो आ रही है। आप सुन के हैरान हो गए कि ऋषि के अखरी अर्थ बनते हैं कवि। ऋषि संस्कृत का जोड़ा ऋषि शब्द है, ये अखरी अर्थ ने कवि। ऋषि वो जिसने रब नूं जाने ते अपनी जानकारी उस जाने हुए अनुभव नूं गीतां दे राहीं प्रगट किया। गीतां दे राहीं कृष्ण दे जबान चो जो बोल निकले उन्होंने ते आख्या गीता दे, गीता गीत, आत्मक गीत, प्रभु दे गीत, परमात्मा दे गीत। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं जो कुछ बाणी, तो पता की लिखते हैं, कवि आवाज, कवि दे बचन,
कवि दे बोल। चौपाई के उत्ते साफ लिखा, इस तो कई भरम भुलेखे भी पै गए भी शायद किधर कवि की बाणी तो नहीं। कौन दसे जो गीतां दे राही गल पेश करे है ही कवि? गुरु नानक देव जी अपने आप को शायर कहते, नानक शायर ये कहता है सच्चे परवरदिगारा। भी ये जी गल कह रहा है ये नानक शायर कह रहा है, नानक कवि कह रहा है। उर्दू शायर कह देंगे, संस्कृत कवि कह देंगे, गल ठीक नहीं। लेकिन कवि कवि फर्क है, शायर शायर विच फर्क है। एक दी गल दिमाग चों आ रही है, एक दी गल गहरे तल चो आ रही है, आत्मा चो आ रही है। शायर जिहदी गल दिमाग चो आ रही है दावा करेगा ये कविता मेरी है, ये किताब मैं लिखी है, ये लेखनी मेरी है, ये साहित्य मेरा है। पर जिहड़ी गल आत्मा के तल तो आएगी वो कतई नहीं दावा करेगा मेरी है। उन्हें तो कह देना जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला। कसम की बाणी अपने बोल ही नहीं, कोई दावा नहीं मेरे। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई दावा नहीं किया। तुसीं पढ़ना बचित्र नाटक, बचित्र नाटक के साफ लफ्ज लिखे ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। अकाल पुरख के बचन मैं कीड़े नूं, जो कुछ होए मैं कह रहा, मेरे अपने बचन ही नहीं। गल अगों खोल दी, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग माहे, जो ते प्रभ को ध्यान है अंत सुरभ को। जो मैनू परमात्मा ने आख्या मैं जगत नूं कह दिता है, होर मेरे अपने कोई बोल नहीं, मेरी अपनी कोई गल। जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग माहे। जगत नूं जो कुछ भी मैं कहा है उही कहा है जो कुछ मैनू अकाल पुरख ने कहा। हजरत मूसा कोतूर ते बैठदा सी, समाधि लांदा सी कि पहाड़ तो जो थले आंदा सी लोग इकट्ठे हो जाते सन। ते मूसा कहंदा सी अज मैनू जो कुछ खुदा ने कहा सुनो, लोग सुनते सन। मुहम्मद साहब भी कह देंगे सन अज जो मैनू अलहाम होया सुनो, अज जो नाजिल हुई है गल वो सुनो। सूफी संत भी यही कहते रहे ने, अज जो खुदा बोलिया है वो साडे बोलों के राही सुनो, अज जो रब साडे नाल बोलिया है वो तुसीं सुनो। जिस वक्त समाधि लग जाती है उस वक्त मनुख खो जाता है, उस वक्त परमात्मा ही होता है। उस वक्त जिन्ने बोलने वो परमात्मा दे ने, इस समाधि विच उचारण किए हुए बोल ने। पर गालिब दे बोल शराब के नशे उचारण किए हुए, बेचैनी ते परेशानी विच, दुख दे ते चिंता विच, दिमाग चो निकले। तो जो दिमागी तल तो निकलते हैं वो पुराने हो जाते, बस सुने ते पुराने हो गए। कविता पुरानियां हो जांदियां ने, महापुरखों के गीत पुराने नहीं आते, क्योंकि वो दिमाग चो नहीं निकले, वो ते आत्मा तो निकले। ते आत्मा सदा नवी है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। कवि तो भुलेखा लग जाता है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिखे, कवि बाज बेनती चौपई, कवि दे वचन। बई ये तो शायर की गल है नहीं, अध्यात्मक कवि की गल है। जो एक रवानी होवे, लगा मात्रा की बंदिश दे होवे ते छंद दे होवे, वो तो होंदी कविता। उन्हें तो कविता ही कहते, उन्होंने तो गीत कहते, वो तो होंदी शायरी है। उर्दू की जी शायरी वो कुछ नज़म होंदी है, नज़म है, गज़ल है, किता है, रुबाई है। कुछ इस ढंग दियां कवितावां उर्दू जगत दे च, बई ये नज़म है, ये गज़ल है, ये किता है, ये रुबाई है। संस्कृत पंजाबी हिंदी जगत दे उत्थे जो कुछ है बई ये सवैया है, ये कवित है, ये छंद है, ये दोहा है, ये श्लोक है। ये संस्कृत की शायरी है, पंजाबी की शायरी है, हिंदी की शायरी। बई ये छंद है, ये दोहा है, ये श्लोक है, ये सवैया है, ये कविता है। पर गजब की गल यह है संस्कृत पंजाबी ते हिंदी जगत दे कि छंद हजारां किस्मां दे, हजारां किस्मां दे। और बहुत सारे छंदां की झलक गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाप साहब विच पेश कर दी है। भुजंग प्रयाद छंद, चाचरी छंद, तौ प्रसाद छंद, तुसीं पढ़ोगे दंग रह जाओगे। वो छंदां दे नाम वख वख छंद हैं। चाचरी छंद हिंदुस्तान दे
जो कुमायूं ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਮਾयूं ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿੰਗੀ ਟੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ, ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ। ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੰਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੱਝ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਛੰਕੰਤ ਗਾਜੀ ਗਜੰਕੰਤ ਤਾਜੀ, ਡਢੰਕੰਤ ਢੋਲੰ ਭਵੰਕੰਤ ਭੋਲੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਰਾ ਵਜਾਓ ਨਾ, ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਖੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ। ਔਰ ਕਨਨ ਟੈਗੋਰ ਰੋ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਟੈਗੋਰ, ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗੀਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਗੀਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ ਐਸਾ ਕਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਜਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੀਤ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਨ ਕਾਂਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੂ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੂ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ। ਨੀਲ ਕੰਠ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਰ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ। ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਪੱਪਾ ਚਲੇਗਾ ਪਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵਨ ਪਵਨ ਆਹਾਰੀ। ਪਵਨ ਆਹਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਪੱਪਾ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਮਾ। ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ, ਮਹਾਜੋਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਮਹਾਜੋਤ ਮਦ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ। ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਵੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੌਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इकबाल ने एक दहा आह भर के किया है, खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खाक सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं किसकी दौलत हूं। कहता बहुत बड़ा मैं खजाना हाँ, पर मिट्टी के ढेर ने मैनू छुपा के रख दिता, दब के रह गए। खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खाक सहरा ने, रेत के टिबिया ने मैनू दब छड़े, मरु थल ने मैनू दब छड़े, रेगिस्तान दी रेत दे थल्ले मैं दब के रह गया। खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं किसकी दौलत हूं। और रेत थल्ले दबे हुए इस खजाने नूं की पता चले, जगत नूं की पता चले। यकीन जानो बहुत बड़ी दौलत है। लड़ाई झगड़े ते वितकरियां दे रेत दे थल्ले असीं इस नूं दबा के रखे। झूठे पखंड, झूठी मनौत, झूठी सियाणप दी रेत दे थल्ले इस खजाने नूं दबा के रखे, कख नहीं पता। इतना वड्डा खजाना कौम कंगाल है, इतनी वड्डी ज्ञान दी दौलत, लेकिन सियाणे बंदे कहंदे सिख ते मूड़ ने, इन्हां नूं कख नहीं समझदे। इते बिल्कुल नादान ने। इन्नी वड्डी दौलत सिर्फ इतनी है कि रोज रेत होर पाई जांदे ने, खजाना होर छुपदा जाए, होर दबदा जाए। चाहिदा ते इसी रेत एक पासे कर दे, ये खजाने प्रगट होंदे
पर होर रेत पाई जाते हैं वितकरियां की, दुबदा की, अज्ञानता की, पखंड की, वहम की, तौमात की और फोकी सियाणप की, हंकार की होर रेत पाई जाते हैं और खजाना होर मरूथल बनता जा रहा है। खजाना रेत का टिब्बा बनता जा रहा है। मैं ऐसा देखा कि रेत के टिब्बियां तो कौन प्रभावित होता है? कोई भी नहीं प्रभावित होता। इतनी मैरिज कर दे। मरूथल तो कौन? तपदी हुई रेत तो जिथे लू चलती होवे कौन प्रभावित होवे? जिहड़ा तुहाडे कोल आवे ते रेत के टिब्बे दिखाई देवन ते तपदी हुई लू होवे जिहड़ी साड़े अगले कौन बैठेगा? कौन आएगा? कौन तुहाडी महफिल च बैठेगा? कौन तुहानू तुहाडे कोल प्रेरणा लेगा? तो जब हिंदी संस्कृत के कवि ऐसा कहते हैं भाई इन्नी वड्डी दौलत है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐसा कहा, कमाल है उन्होंने एक कथनी। गुरु गोबिंद सिंह जी दी बारीकियां किस वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा, सिर्फ शायरी की, कविता की, बशर्ते किसी के अंदर कोई कविता की मस हो, कोई शायरी का शौक हो, साहित्य का प्रेमी हो, कला का प्रेमी हो। गुरु गोबिंद सिंह जी निरे सूरमे नहीं, निरे संत नहीं ने, निरे सिपाही नहीं ने, उच्च पद्धर के कवि ने, महान शायर ने, कविओबाज। वो जी गल कहते हैं कवि के बचन, कवि के बोल, कवि के गीत, कवि की गल। तो जिसकी कविता आत्मा के गहरे तल तो आवे वो रब्बी शायर है, ते जिहदी कविता दिमाग चो आवे वो सिर्फ शायर है, सिर्फ कवि है। गल दोहां दी इक्को होगी, एक दी गल फिक्की पैगी, एक दी गल फिक्की नहीं पैगी, एक दी गल पुरानी हो जाएगी, एक दी सदियां लंघ जान, युग लंघ जाए, गल पुरानी नहीं होगी। बस इतना ही फर्क है। तो गालिब दीयां गल्लां पुरानियां हो गई, चुक के परे सुट दित्तियां गईयां। गुरु नानक की गल पुरानी नहीं हो सकती, गुरु अर्जन देव जी के गीत पुराने नहीं हो सकते, आत्मा चो निकले ने, दिमाग तो थोड़ी निकले ने। गल गालिब भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह करता है, एकाग्रता बख्शना। वो कहता है बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कहता दिन रात मैं ये बच्चे का तमाशा देखदा, दुनिया दिन चढ़ रहा है फिर डुब रहा है, मनुख जम रहा है फिर मर रहा है, हुणे रो रहा सी हुणे हस रहा है। बच्चों की खेल, जब हसदा पे तो हस, फिर रोंदा क्यों है? जब रोंदा पे तो फिर रो, फिर हसदा क्यों? जे जी रहे हैं तो फिर जी, मरदा क्यों है? कि जब मर रहे हैं तो फिर पुनर्जन्म क्यों? गरज के गालिब कहते थे खेल है, एक तमाशा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। तख्ते सुलेमानी, सुलेमान मिस्र इजिप्ट का एक बहुत बड़ा बादशाह होया, बड़ा सियाणा सी, बहुत सियाणा सी, बड़ी गहरी दृष्टि रखता सी। इहदी सियाणप की प्रीख्या लैण वास्ते एक बहुत बड़ा फकीर आ गया सी और उहदे हथ दे दो फुल सन, एक कागज का सी, एक असली सी। पर कागज का फुल ऐसा बनाया कि वह असली को भी मात करता सी। ते जो बादशाह के दरबार में आया, कहने लगा सुलेमान ए राजन ए बादशाह, तेरे नाल जरूरी गल्लां करनियां ने, पर मैं पहले वेखना चाहना तेरी अकल कित्थे खड़ी है। ऐसा ना होवे कि मैं चौथी मंजिल पे खड़ा होवां, तू खूह दे बैठा होवें ते साडे बोल आपस दे मिलणगे नहीं, मेरी गल हवा च खो जाएगी, तेरी गल खूह च खो जाएगी, दोवां दा संबंध नहीं जुड़ेगा। इस वास्ते मैं देखना चाहना तू खड़ा कित्थे है। और यकीन जानो महापुरुष की खास दृष्टि होंदी, वेखना चाहता अगला खड़ा कित्थे। जे उस पद्धर ते ही नहीं खड़ा तो इस दे नाल की चर्चा, इस दे नाल की गल। और गुरु नानक ने साफ कह दिता सी कि मूर्खे नाल ना लुझी, ना लुझी, ना टकराई, उहदा तल होर है और भगत दा तल होर है। फकीर से, सियाणा से, दूरदृष्ट से। कहने लगा बादशाह गल मैं बाद विच करनी है, पर यह दस मेरे हाथ च जिहड़े दो फुल ने, इहदे च असली केड़ा है ते नकली केड़ा है, यह दस पहले। इस तो बिना मैं गल नहीं करांगा। सुलेमान आखिर सुलेमान से हिंदुस्तान विच कहंदा है बनिया सुल्तान फिरदा है, सुलेमान बनिया फिरदा, आम कहावत है। सुलेमान बहुत सियाणा सी, हर सवाल का जवाब उसके कोल सी। सुलेमान कहने लगा 5-10
छिन तू ठहर, क्योंकि मेरे दरबार दे इस महल के दरवाजे सारे बंद ने, मेरा दम घुट रहा। दरबारियां नूं क्या खोलो, बारियां भी खोलो, पर्दे भी हटाओ, सब खोल दिते। बाहर बगीचा सी बड़ा खूबसूरत, आखिर राजे का महल से। एक शहद की मक्खी आई, वो असली फुल ते बैठ गई। सुलेमान कहने लगा, आ जिहड़ा सज्जे हथ दे फुल है ना, फकीर साईं असली है। फकीर कहने लगे, ये तेनों किस तरह पता होया? कहंदा मनुख धोखा खा सकता है, मक्खी नहीं धोखा खा सकती। मनुख धोखा खा सकता है, पशु नहीं धोखा खा सकते। मैं देखे शहद की मक्खी जिस फुल ते बैठी असली होगी, ये क्यों कागजी फुल ते बैठेगी, ये क्यों नकली फुल ते बैठेगी? मैं देखे नकल दे पुजारी पशु नहीं ने। एक कमल का फुल दीवार ते बना दईए ना, ते किसी भौरे नूं आखी तू गुंजार पा, संगीत की धुन छेड़, उड़ जाएगा। कहता नहीं, ये तो नकली, असली थोड़ी है। एक दरिया बना दईए पर्दे ते या दीवार ते, चित्रकार बना देंगे हूबहू, ते किसी मछली नूं आखी तू कलोल कर, तड़प तड़प के मर जाएगी, तो नकली है, तो असली थोड़ी। एक जलदा होया दीवा बना दईए, ते किसी पतंगे नूं आखी तू परिक्रमा कर, तू निछावर हो, तू कुर्बान हो। जे किधरे उस कोल जबान होवे तो कह देगा मैं नकली दीवियां दा पुजारी नहीं। सिर्फ मनुख ही है नकली रब दा पुजारी, नकली गुरु दा पुजारी, नकली संतां दा पुजारी, नकली बंदियां दा पुजारी, नकली चीज़ां दा पुजारी, बिल्कुल नकल दा पुजारी। असल कुछ है ही नहीं। कारण जीवन दे इतना झूठ छा गया, इतनी नकल छा गई, हुण रब भी नकली, गुरु भी नकली, संत भी नकली, महंत भी नकली, सब बंदियां दे आले दुआले नकली नकले, कुछ असली कुछ भी नहीं रहा, हकीकत कुछ नहीं रही। और उत्थे सुलेमान कहने लगा मनुख धोखा खा सकता है, पशु नहीं धोखा खाते। मनुख दे कोल अजे असलीयत नहीं आई, और असलीयत नूं वेखण वाली अख नहीं आई, इस मक्खी दे कोल है। हुण गालिब कहंदा है एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। सुलेमान दी सियाणप ते उसदा तख्त बच्चे दा खेल, कुछ भी नहीं। यानी सुलेमान की सियाणप नूं भी पैरों के थले रोंददा गालिब, इहदी बुलंदी इतनी, इहदा दिमाग इतना, इहदी सोचनी इतनी। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हजरत ईसा दे मौजज़े, बई मुर्दियां ते हथ रखिया ते जिंदा कर दिते, अंधियां नूं अखां दे दित्तियां, बीमार नूं तंदुरुस्त कर दिता। गालिब कहता जे मैथों पुछो इस पैगंबरी पुरुष ने बच्चों के तमाशे किए, कुछ नहीं, मदारियां की है। किसी बीमार नूं तंदुरुस्त कर दिता, केड़ी वड्डी गल। किसी नूं अख मिल गई, केड़ी वड्डी गल। किसी नूं जीवन मिल गया, केड़ी वड्डी गल। इहदे च सदीवी की है? कुछ भी नहीं। ना अखां सदीवी, ना तंदुरुस्ती सदीवी, ना जीवन सदीवी, कुछ भी नहीं। ये तो खेल है। तो हुण गल ते बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी वाली है, लेकिन दिन रात ये बेचैन रहता सी, इसनों नींद नहीं पैंदी सी, बिना शराब पीते, इन्ना बेजार, इतना बेचैन। और ये जब मरण लगया तो आले दुआले शागिर्द खड़े सन, ते कहने लगे उस्ताद संसार तो एक बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, बड़ा कीमती बंदा, जिहदी दिमाग की उडारी बड़ी सी, ते जांदियां जांदियां साडी झोली च कोई शिक्षा दीक्षा पा जाओ, कोई कीमती गल। गालिब कहंदा वक्त नहीं, बस सिर्फ शराब लियाओ छेती, दम निकलदे पे। वो चेले कहंदे ने खुदा नूं याद करो, खुदा नूं, रब नूं याद करो। तो उस वक्त गालिब अपनी सियाणप फिर उत्थे वरतदा है, कहंदा मैं इतना दूर हाँ, इतना दूर हाँ, जे बहुत भी भजन की कोशिश की थी तां भी मैं इस समय च नहीं पहुंच सकता। जब मैं पहुंच ही नहीं सकता, रहने दे, मैं बहुत दूर हाँ, बहुत दूर हाँ। खैर भरी हुई सुराई आई ते हुण हथ कंबदे सन, क्योंकि प्राण निकल रहे सन, श्वास निकल रहे सन, और जबान लड़खड़ा गई, जबान तो हुण बोल भी ना निकलन।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਚੁੱਕੋ ਸੁਰਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਛੱਡੋ। ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਹਾਥ ਮੇਂ ਜੁੰਬਸ਼ ਨਹੀਂ, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों में ना मेरे आगे। ठीक है कहता है मेरे हत्थां च दम नहीं, ठीक है मेरी जबान ते बुल्लां च दम नहीं, पर अखां च ते दम है, वेख ते सकदा, मेरे सामने रहन दो, कम से कम वेखदियां मरा, पी नहीं सकदा, वेख ते सकदा, अखां नाल पीना। ये इसकी जिंदगी सी। लेकिन अज 150 इसके तर्जमे ने और स्कूलों कॉलेजों पढ़ाया जाता, लोग इनू पढ़ के पाकिस्तान में PhD करते, डिप्लोमे लेंदे, बड़ियां गल्लां ने, लेकिन सारी जिंदगी इसकी बेचैनी परेशानी नाल गुजरी। हिरदे की जिसनों पवित्रता कहते हैं वह भी इसके नेड़े नहीं आई सी। इतनी गल स्पष्ट है कि यह आदर्शवादी जरूर से। यह कहता है वफादारी, मैं बई धर्म किसनों मनदा, तेनों पूछा गया सी धर्म की है, तो कोई मजहबी भी है कि नहीं, किसी मजहब का पुजारी भी है कि नहीं। कहता मेरी राय यह है वफादारी बशरते अस्तवारी, असल ईमा है मरे बुतखाना में ब्राह्मण जागाड़ो काबा में। कहता असली ईमान है वफादारी, विश्वास, भरोसा, सिदक। कहता अगर एक ब्राह्मण बुतां दी पूजा करदियां करदियां भरोसे च मर जाए तो उहदा अकीदा ते भरोसा भी उत्थे ही होवे। कहता उसकी कबर मदीने च बनाओ, मुहम्मद साहब के सामने कोल बनाओ, वो मुहम्मद साहब तो घट नहीं है, वो मुहम्मद साहब तो थले नहीं है। इत्थों पता चलता है ये सोचण समझण का ढंग की सी। कहता ठीक है एक पूजा कर रहा है, मुहम्मद साहब की भरोसा विश्वास ही नहीं, एक पूजा कर रहे हैं बुत भी कुछ भरोसा है, विश्वास है। कहता ठीक है बुतां च कख नहीं प्रगट होएगा, पर उहदे भरोसे ने भाग लाने, उहदे सिदक ने भाग लाना। सिदक तो गल प्रगट होएगी, भरोसे तो गल प्रगट होएगी। असली गल ते भरोसा है, टेकी जा तो मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं भरोसा ही नहीं तो कुछ नहीं, सिदक नहीं तो कुछ नहीं। कई मत्था टेकदे टेकदे खप गए, गल कख नहीं बनी, क्योंकि सिदक नहीं, भरोसा नहीं। हुण गल ये ब्रह्म ज्ञानियां की तरह करता है, लेकिन हिरदा इसका बड़ा बेचैन है, अशुद्ध है, परेशान है। तो कोई बंदा दिमागी तल पे बहुत उच्चा हो जाए तां भी जरूरी नहीं कि वह संत होवे, फकीर होवे, महात्मा होवे, ये कोई लाजमी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने एक दिन मैं सुभावक किया, हल्द्वानी में इकट्ठे हो गए। मैं सवेरे शब्द की कथा करता सी, वो शामी खुला लैक्चर देंदे सन। ते बाहर शामी सैर नूं जो जाइए तो सुभावक 2 वचन मैं कह दिते। मैं कहा मानसिक अवस्था थोड़ी कित्थे खड़ी है, आपां दोवें ही खड़े इस वक्त, तां होर कोई है नहीं। तुसीं मेरे कोल पुछो, मैं तुहाडे कोल पुछां, कम से कम मैनूं पता चले तुसीं कित्थे खड़े हो ते थानूं पता चले मैं कित्थे खड़ा। कहण लगा मैनूं ते कोई शौक नहीं तुसीं कित्थे खड़े, मैं नहीं पुछदा, पर तुसीं पुछिआ तो मैं दसदा। उन्हें मैनूं एक कविता सुनाई अपने, कहंदा दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंघा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती पादा ताने घड़िया, पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली पिरदर खड़िया। ये कविता प्रिंसिपल गंगा सिंह दी है, ये रवाई उन्हां दी है। कहता रब ने हिरदा ते सागर की तरह बनाया सी, वो बड़े मोती जवाहर पा दिते, दुनिया भर की दौलत बोल बोल के सारी गवा छड्डी गए, जावांगा खाली पल्ले कुछ नहीं। ते मैं तो प्रिंसिपल साहब इतनी वड्डी जिहड़ा सच्चाई कबूल कर लैंदा है, वो भी कुछ सच दे नेड़े, नहीं तो कौन कबूलदा। इत्थे महा झूठे पखंडी भी अपने आप नूं ब्रह्म ज्ञानी कही जांदे, परम संत कही जांदे। इतनी सच्चाई तुसीं मन लई, कुछ ना कुछ हिरदा सच दे नेड़े, वरना इतनी सच्चाई कौन कबूल करता है, इतनी सच्चाई कौन प्रवान करता है। तो खैर मनुख बहुता आलम हो जाए, विद्वान हो जाए, दार्शनिक हो जाए, कवि हो जाए, शायर हो जाए, तां भी कोई फकीर तबीयत उसके अंदर पैदा हुई हो, संत है, एक लाजमी नहीं, ये जरूरी नहीं। लेकिन उसकी मान प्रतिष्ठा होगी, क्यों कि दिमागी ताण है, इस ताण के आले दुआले मान जरूर आएगा।
ਤਨ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨ ਦੇ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਤਾਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਲਾਗਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਨਾ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਮਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੜ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਤਾਣ, ਤੇ ਤਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂਦੇੜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਿਰ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੱਸ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੱਬੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਦੱਸ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਚਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਜੀਵੜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਚੋਟ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੈਯਦ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਸੈਯਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ। ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇਰ ਬਹੀਨਾ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਮੇਂ ਲਖ ਅਜ਼ਮਤ ਪੀਨਾ। ਐ ਸੈਯਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਵਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਿਲ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। सारी जिंदगी बर्बाद चली गई, रोंदिया रोंदिया कख भी कदर किसी ने देखा भी नहीं, रोया भी है कि नहीं। तो उत्थे साहब कहने लगे करामात नहीं तो होर की है। सैयद कहने लगा नहीं महाराज, थोड़े कोल केड़ी करामात है, ये तो बहादुर शाह दी हो गई। ते महाराज ने जेब दे चों मोर कड्डी ते उन्हां दिनां हिंदुस्तान विच जिहड़ा सिक्का चलदा सी उहदा नाम दिनार सी। बहादुर शाह ने दिनार रखिया होया सी, दिनार अरब देशां चलदे। पिख दिनार जो हाथ हमारे, एहो अजमत लियो दुती बिचारे। ऐ सैयद देखदा पे मेरे कोल दिनार, ये सोने दी मोर, ये अजमत है, करामात है। सारे संसार दी हलचल दा केंद्र है, भज दौड़ दा केंद्र है, समुचे संसार की उपजीविका का केंद्र है, मरकज है, माया है, मां है, और समुचे जगत की भज दौड़ है, करामात है, शक्ति है, अजमत है। अद की सैयद औखा हो गया। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सुन सैयद बोलियो तज मौ ने, तुम में करामात है कौन। भाई ये तो ठीक है कि दिनार की करामात हो गई ना, पैसे की, ते ओ करामात हो गई बहादुर शाह दी। तुसी की रख लियो, तुसी वली अल्लाह, तुसी पैगंबर, तुसी 10वें गुरु, तुसी 10वें गुरु नानक, तुसी की रख लियो, तुहाडे कोल की। हुण भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छठा समान प्रकाशी। छठा कहते हैं बिजली नूं। मयान चो जद पातशाह ने तलवार कड्डी ते ओ इंज चमकी जिवें आसमान विच बिजली चमकदी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ बोल ने बड़े कीमती। मूर्ख गंड पवे मोह मार। गंड किस तरह जुड़ती है, गोरी सेती टुटे भतार, उत्ती गंध पवे संसार। गोरी पति पत्नी का संबंध टुटन लग पाए, तलाक तक नौबत आ जाए, डिवोर्स तक नौबत आ जाए, तो गुरु नानक कहते हैं अगर उस दौरान किधरे पुत्र का जन्म हो जाए तो बच्चे करके टुटे हुए संबंध फिर जुड़ जाते हैं, बच्चे की ममता जोड़ देती है। गुरु नानक के बोल, पुत्रा नाल संसार की गंढ जुड़ती है, ये अर्थ नहीं ने इस चक्कर कभी ना पैना, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि पहली पंक्ति पढ़ोगे तो दूसरी पंक्ति के अर्थ होंगे। गोरी सेती टुटे भतार, पत्नी नालों पति टुटन लगे, नौबत तलाक तक पहुंचे, तो पुत्ती गंढ भवे संसार, पुत्र करके टुटा रिश्ता फिर जुड़ जाता है औलाद करके। क्योंकि मर्द नूं भी सोचना पै जाता है, स्त्री नूं भी सोचना पै जाए बच्चे कितने जाणगे। इस तरह की भावना टुटे दिल फिर जोड़ देती है, इस तरह की गल टुटे रिश्ते नूं फिर जोड़ देती है। गोरी सेती टुटे भतार, पुत्ती गंढ भवे संसार। फिर साहिब कहते ने, चूंकि लंबे चौड़े दो शब्द ने, किस वक्त खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। हुण मुर्दियां नाल किस तरह संबंध जोड़िए, मोया नाल, जीवलियां नाल किवें संबंध जोड़िए, इस सारे दे उत्ते साहिब गुरु नानक ने रोशनी पाई है। पर मूर्ख दे नाल किस तरह संबंध जोड़िए मैं इन्नी गल कर। मूर्ख गंढ पवे मोह मार, ये अकल नाल नहीं समझते, विचार नाल नहीं समझते, फिलसफे नाल नहीं समझते, कविता नाल नहीं समझते, क्योंकि सिर विच अकल ही नहीं, उसकी वरतन की जांच ही कोई नहीं। हुण गुरु नानक दे बोल ने जो मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, मूर्ख गंढ पवे मोह मार, इनू ते चार मुखियां ला दो तां ही समझेगा, उंज नहीं समझेगा, उस तो बिना नहीं, उस तो बिना नहीं गल बनेगी। खैर सतगुरां ने गुरु नानक दे जो बोल ने उन्होंने प्रगट किया, म्यान चो तलवार कट ली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छठा समान प्रकाशी, तत्क्षण बदन पीत होए गए, लोचन समुख न करते भय। सारे दरबारियां दे चेहरे पीले पै गए। ऐ की हो गया, तलवार कट ली ते खैर कोई नहीं हो, कुछ ना कुछ होगा। तत्क्षण बदन पीत होए गए, पीले पै गए चेहरे, लोचन समुख न करते भय। हूँ सतगुर की तरफ कोई अखा नहीं करता, सारे सिर नहीं है, ये तलवार कट ली नंगी। तेज दिपत श्री मुख ते कहें, प्रकाश दी मूर्ति तेज दे पुन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोल दें, भाई साहब लिखते हैं, तेज दिपत श्री मुख ते कहें,
ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸੈयद, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ लगा महाराज नहीं मैं तो उंज बचन बिलास करने सन, उंज थोड़े नाल विचार वटांदरा करना सी। साहब कहने लगे नहीं विचार वटांदरा बाद हुण तू बोल करामात दिखा मैं तेनों दिखावां। हथ जुड़ गया, कंबन लग गया। साहब कहने लगे बहादुर शाह ये सारे जादू टोने ठंडे पै जाने, मैं अपने खालसे नूं यह करामात देनी, मैं हिंदुस्तानियां नूं यह करामात देनी, मैं जगत नूं यह करामात देनी। ये धागे तवीज़ करदा सी ना, ये जादू टोने करदा सी। खिमा करनी, मैं गुरुद्वारियां दे इकट्ठ दे विच देखिया जरूर ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, पर कदी कदी देखदा ते धागे तवीज़ां दे पुजारी ने गुरु ग्रंथ साहब की पूजा निरा ही पखंड है इन्हां दा। गल ते कुछ होर है, असल ते कुछ होर है। और मैं इस तरह के सैकड़े संत महंत देखे ने जिन्हां दा कम सिर्फ धागे तवीज़ ते ही चलता है, और उन्हां दा इष्ट देव धागा तवीज़ है, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं, शब्द नहीं, गुरमत नहीं। बिल्कुल निकम्मे चक्रां च जिथों गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू कढ़िया सी उसे पताल फिर सुट दिता इन्हां लोकां ने। इस अनपढ़ टोले ने जिन्हां गुरबाणी की कोई बूझ नहीं सी, समझ नहीं सी, निकम्मे चक्रां च सानू जोड़िया। मैं उत्थे इलाहाबाद विच देखिया सारा दिन धागे तवीज़ एक संत वंडी जाए, उंज अंधा सी, नेत्रहीन सी ते पिस्टल दो पाया। मैं कहा मारेगा तो अपने चेलियां नूं मारेगा और किस नूं मारेगा। पिछले दिने पठानकोट विच निहंग सिंह उन्होंने टकरे तो फिर तां ही सीधा होया, उंज नहीं सीधा होया। मैं तो उहदे नाल विचारां ही करनियां सन। एक माता आई, उन्हें किधरे मत्था टेकिया तो कहने लगी संत जी मेरे मत्थे च हमेशा पीड़ रहिंदी है, तुसीं कोई बख्शिश करो। मैं विचे बोल पिया, मैं कहा मां तैनूं पीड़ रहिंदी, किसी वैद कोल जा, किसी डॉक्टर कोल जा। कहने लगी गैनी जी थोड़ी गल नहीं, मैं संतां नाल गल करनी। मैं कहा ठीक है तू कर, संतां नाल ही करना। उन्होंने जेब चों एक कागज़ कढ़िया, उहदे ते काला धागा लपेटिया ते माई नूं कहे इहनूं तांबे च मड़ के गल च पा ले, पीड़ा दूर हो जाएगी। तो मैनूं असलीयत का पता सी। जो चली गई ना माता, मैं कहा संत जी थानूं जद मत्थे च पीड़ आउंदी है सैरीडाउन की गोली खांदे, एस्प्रो खांदे, ते उहनूं धागे ते कहंदे तू ज्ञानी सिंह है ना, तैनूं कख नहीं पता। तो मैं कहा रब इहो जिहां दा संत बनावे ही ना मैनूं, मैं बनना ही नहीं। मैं किहड़े चक्कर जगत नूं यही झूठ सिखाना और यही झूठ चलता है। ऐसा ना समझना कोई इत्थे असीं बहुत बौद्धिक तौर पर तरक्की कर गए नहीं। हिंदुस्तान तो बाहर मैं ज्यादा पखंड देखे, बहुत ज्यादा देखे, इस तरह के वहम तमाद बहुत देखे, इस तरह के गलत गल्लां बहुत देखिया। उसे संत नूं फिर मैं रांची देख लिया। एक दंपति आए, पति पत्नी, अधकड़ उम्र हो गई सी, घर दे किधरे औलाद नहीं सी, ते लगे जोदड़ी करन बई संत जी साडे घर औलाद नहीं है। संतां ने ओही कागज़ ते ओही काला धागा, सारियां बीमारियां दा इक्को इलाज रखे होया सी, ऐ लपेटे ते बई इहनूं सोने विच मड़ के गल च पा लेना, सोने च। वो चूंकि मामूली रोग सी, तांबे च मरना सी, जरा खास रोग सी, सोने च मरना सी। गल जिहड़ी इतनी ते ज्यों वो चले गए तो फिर मैनू कहना पिया, हालांकि वो औखा बड़ा सी। कहने लगा गैनी जी तू इत्थे भी है? मैं कहा होर इत्थे भी है। तो सुभावक मैं पूछ लिया, मैं कहा इन्हां दे घर औलाद हो जानी है? कहने लगे हाँ हो जानी। मैं कहा जिहड़ियां मुर्गियां ने, सूर ने, कुत्ते ने, इन्हां नूं भी तुसीं धागे तवीज़ देंदे हो, 10-10 बच्चे इन्हां दे हो रहे हैं। ये जन्म मरण हमरे वस ना है, ये जोर न जीवन मरण न जोर। ये तो जन्म मरण करतार के हथ च, जे अज तेरे हथ च तो करतार की पूजा की कोई लोड़ ही नहीं, परमात्मा की प्रतिष्ठा की कोई लोड़ ही नहीं। फिर ईश्वर बेमैनी हो जाती है अगर जन्म मरण मनुख के हथ च, कोई लोड़ ही नहीं पूजा करने की। दो ही चीज़ां ने साडे कोल नहीं, असीं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं जम्मे। कोई कह सकता मैं अपनी मर्जी के मुताबिक माँ बाप नूं चुनिया तो जम्मे, कोई नहीं जम्मे। तो जे मर्जी के मुताबिक जम्मे नहीं तो मर्जी के मुताबिक मरांगे भी नहीं। जोर न जीवन मरण न जोर, ये जन्म मरण हमरे वस ना आए। जिस दिन जन्म ते मरण साडे वस च हो गया, उसे दिन पक्की तौर पर नास्तिकता होगी, रब की कोई लोड़ ही नहीं, परमात्मा की कोई लोड़ ही नहीं, फिर ईश्वर की कोई लोड़ ही नहीं। जब मैं उन्होंने गल कही ना, कहने लगे ये तो दिमागी ढकोसले ने, थानू पता ही नहीं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैं तो दिमागी ढकोसले कोई तेनों सीधा कर देगा। फिर पठानकोट दे हो गई गति, हुण नहीं कहता, हुण इस तरह की गल्लां नहीं करता। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जगत इस तरीके का सिलसिला भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तलवार कढ़ी,
कहने लगा मैं ऐ सैयद समुचे खालसे नूं इस बीमारी तो बचाना, मैं तो ये शक्ति देनी है, मैं तो इस करामात का पुजारी हूं, मैं तो ये करामात जाना, मैनू इसका बोध है, इसका पता है। खैर गल सतगुरां ने इत्थों शुरू की सी कि पिख दिन और जो हाथा मारे तो धन भी एक तान है, तो इस तान के आले दुआले भी मान इकट्ठा हो जाता है। अगां चलिए राजसी तान, कोई कुर्सी मिल गई, ताकत है, हुक्मरान है, मिनिस्टर है, देश का राजा है, हुक्मरान है, तो फिर इस तान के आले दुआले मान होगा, क्योंकि तान जो है, तान की छाया है मान, प्रतिष्ठा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक होर तान नूं मनदे ने, वो है मानसिक तान। मन की एकाग्रता नाल प्राप्त हो जाता है, मन किसी थां ते भी एकाग्र कर लो हो जाता है, लेकिन उहदे नाल हिरदे की शुद्धि नहीं होती। इतनी मैं अर्ज करते हैं, साडे देश विच सिद्ध लोग हिरदे करके शुद्ध नहीं सन, पवित्र नहीं सन, बड़े हंकारी सन, निक्की गल ते शराब दे देंदे सन, लेकिन सिद्धियां उन्हां कोल बड़ियां। और उसका जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं, सिद्ध होवां सिद्ध लाए रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैठा रोक राखे पाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चेतना आवे ना। किहड़े निकम्मे चक्रां च पै गया। इहो जिहां दा सिद्ध इस वक्त साईं बाबा साडे हिंदुस्तान च बड़ा कुछ दिखा रहा है। केसां चों राख निकलदी है, हत्थां चों घड़ियां कढ लैंदा है, फल कढ लैंदा है, जिहड़ी चीज़ मंगो लखां दी कठ विच। और उस अज दे समय च उसदी बड़ी गल है, जिथे पहुंचता लखां दा इकट्ठ हो जाता, लोग जादूगरी वेखण वास्ते, ये सिद्धपना वेखण वास्ते। 3 साल पहले बंबई के एक संत ने दावा किया, मैं पानी ते चलांगा, 5000 बंदियां दा इकट्ठ हो गया, लेकिन वो चल ना सकिया, लेकिन चल लैंदा सी। ऐसी गल नहीं है। वो कहने लगे 5000 बंदे मैनू देखते पे ने ते इन्हां दियां लहरां मेरे मन नाल टकरा रही हैं, मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा, इस वास्ते मैं चल नहीं सकता। और हजारां मनुखां दा यह कहना है, एक जिन्हां ने देखिया कलियां कलियां भी चल रहा है, समुंदर के पानी ते चलन लग पैंदा, सरोवर ते चलन लग पैंदा। पर इसनूं नाटक चेटक कलगीधर पातशाह ने कहा, नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन के आवत लाज। इस सिद्धियां मन की एकाग्रता नाल हो जांदी। और किधरे कोई तांत्रिक योगा विच माहिर होवे ते तांत्रिक भी काला होवे, तो इस तरह दीयां बहुत सारियां उसदे कोल सिद्धियां आउंदियां। गुरु घर विच इसनूं कढ दिता गया बई इस दे नाल जिंदगी सफल नहीं होंदी, जीवन भ्रष्ट होंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ, ਗਛੈਣ ਨੈਣ ਭਾਰੈਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਅਤੇ। ਗਾਥਾ ਮੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਯੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। नभ के उदय ते जो पे पाईयत नारायण, अनल आकाश पंछी डोलबो करत है। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहना पिया इस तरह का, नभ के आकाश विच उड्डण नाल। परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने, दीपां लोहां खंडां ब्रह्मंडां दा भरमण करके आवे। कितनी देर विच? गछैण नैण भारेण नानक। गछैण कहंदे गवन करनों, चलण। नैण भारेण अख दी पलक थले तो उपर होवे, इतनी देर विच 9 खंडां दा भरमण करके आवे। किसी को यह सिद्धि भी मिल जाए तां भी हिरदा पवित्र नहीं होता, तां भी मन नूं सुकून नहीं मिलता, तां भी मन नूं शांति नहीं मिलती, तां भी अध्यात्मक रस तो बंदा वांझा रह जाता है, तां भी परम पद प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हैगियां ने मानसिक ताण इस तरह का किसी को होवे तो वही पूजा प्रतिष्ठा होगी, वह भी मान होगा। साईं बाबे का बहुत है, जिथे भी चला जाए, हिंदुस्तान के जिस सूबे चला जाता लोग इकट्ठे हो जाते, सिर्फ ये गल वेखण वास्ते, सिर्फ ये सिलसिला वेखण है कि उसके कोई ज्ञान है, ज्ञान की गल करता नहीं, कोई रब दे मिलन की गल करता कतई नहीं, जादूगरी है दिखाता। लोग प्रभावित होंगे, लोग सन्मान करते हैं, लोग मत्था भी टेकते हैं, लोग पूजा भी करते। ताण है, इनू कहते ने मानसिक ताण, और मन की एकाग्रता के नाल यह हो जाता है। और इस तरह के हजारां ने इस वक्त मैं जिक्र करा, क्योंकि 5-7 बंदे तो हिंदुस्तान में आए दिन दिखाते हैं यही कुछ, और लखां बंदे देख रहे हैं। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जब घर चों निकले ने
ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਾਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸਕਤ ਤੋਏ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਇਸ 16,000 ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕੌਣ ਸਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ। ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੈਸਾ ਧਨਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਬਾਬਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਜੈਸਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦਾ ਤਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਕਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਣ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟੇ। हे ਸੱਚ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਵਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਸ ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਪੈਣ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਐਸਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਐਸਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਨਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੀ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਗਨ ਸਨ। ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ। ਨਗਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ।
और भगत कबीर ने ऐसा कह देता है, कबीर सो मुख धन है जय मुख निकसे राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गोग्राम। देही भी तो गल छड्डो, सारा शहर पवित्र हो जाता है अगर टिक के कोई नाम जपण वाला होवे, टिक के कोई गल करन वाला होवे, उन्होंने फिर जगत की चिंता की लोड़ नहीं पै जाती। उन्होंने पता है एक खिड़े फुल के नेड़े ਜਿਹੜਾ भी आएगा महक लै लेगा, एक जलदे हुए दीवे को ਜਿਹੜਾ भी आएगा प्रकाश लै लेगा। हाँ ये गल वखरी है जिहदियां अखां ही अंधियां होवन वो वांझा रह जाए, या जिन्हों नज़ला ते जुकाम होवे शायद उन्होंने फुल्लां दी वासना ना आवे, उन्होंने महक ना आवे, ये गल वखरी है। तो साहब बख्शिशां करन, नाम बाणी हिरदे च वसे ताकि जगत की ताकतां परिक्रमा करन, असीं उन्हां दे दास ना बणीए, ये साडीआं दासियां होवन, ये साडा काम करन। बस इतने बोल प्रवान करने, काफ़ी समा हो गया। फिर कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी हाज़री भरांगे। भुल चुक ले खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।